नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमसीक्यू सीरीज के इस सेशन में। यह सीरीज विशेष रूप से एएनएम, जीएनएम कंपटीशन एग्जाम के लिए विशेष रूप से तैयार की गई है। तो शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर इज स्पेसिफिक टू विटामिन सी डेफिशिएंसी? ऑप्शन ए, cracks on lips. Option B, spongy bleeding of gums. Option C, pale conjunctiva. Option D, rashes on skin. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्पॉन्जी ब्लीडिंग ऑफ गम्स। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, स्पॉन्जी ब्लीडिंग ऑफ गम्स। Spongy bleeding of gums is a specific symptom of scurvy and is often one of the earliest signs of vitamin C deficiency. In addition to gum bleeding, other symptoms of scurvy may include fatigue, weakness, joint pain, easy brushing, slow wound healing, and dry and splitting hair. These are the symptoms of vitamin C deficiency. तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, स्पॉन्जी ब्लीडिंग ऑफ गम्स। The following elements present in human body, the maximum quantity is of. The following elements present in human body, the maximum quantity is of. Option A, iron. Option B, sodium. Option C, phosphorus. Option D, कैल्शियम। इनमें से सबसे ज्यादा एलिमेंट्स जो ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कैल्शियम। कैल्शियम इज द एलिमेंट दैट इज प्रेजेंट इन द हाईएस्ट क्वांटिटी इन द ह्यूमन बॉडी. इट इज एन एसेंशियल मिनरल that play a crucial role in various physiological processes. Approximately 99% of the body calcium is found in the bones and teeth, providing strength and structure. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कैल्शियम। लेप्रोसी इज कॉज्ड बाय। लेप्रोसी किसके कारण से होती है? ऑप्शन ए, वायरस। ऑप्शन बी, बैक्टीरिया। ऑप्शन सी, माइक्रोप्लाज्म। ऑप्शन डी, प्रोटोजोआ। लेप्रोसी इज कॉज्ड बाय, करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, बैक्टीरिया। Leprosy, also known as Hansen disease, is caused by a bacterium called Mycobacterium leprae. It is a chronic infectious disease that primarily affects the skin, peripheral nerves, and mucous membranes. So, इसका correct answer leprosy is caused by bacteria. Which of the following gases in essential for photosynthesis? Which of the following gases is essential for photosynthesis? Option A, carbon monoxide. Option B, carbon dioxide. Option C, nitrogen. Option D, oxygen. Which of the following gases is essential for photosynthesis? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड is essential for photosynthesis, the process by which plants, algae, and some bacteria convert light energy into chemical energy to produce glucose and oxygen. So इसका करेक्ट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड होगा। Which of the physiological process thrombin is associated with? Physiological process thrombin के साथ है, करेक्ट ऑप्शन ए, एक्सक्रिएशन। ऑप्शन बी, रिप्रोडक्शन। ऑप्शन सी, ब्लड क्लॉटिंग। ऑप्शन डी, ग्रोथ। विच ऑफ द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस थ्रोम्बिन इज एसोसिएटेड विद? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्लड क्लॉटिंग। थ्रोम्बिन इज एन एंजाइम दैट प्लेज a vital role in the process of blood clotting, also known as coagulation. When there is an injury or damage to blood vessels, the body initiates a series of reactions to form a blood clot, which helps prevent excessive bleeding. So, which of the physiological process thrombin is associated with?
इसका करेक्ट आंसर ब्लड क्लॉटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नेसेसरी फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड? कौन सा विटामिन नेसेसरी है कोगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी 12, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन डी। कौन सा विटामिन नेसेसरी है कोगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन के। Vitamin K is necessary for the coagulation and clotting of blood. It plays a vital role in the synthesis of certain proteins involved in the blood clotting process. These proteins are known as clotting factors and they play regulate and control the formation of blood clot. So इसका correct answer option C vitamin K. During active management of labor, injection ergometrin is contraindicated in which of the following condition? During active management of labor, injection ergometrin is contraindicated in which of the following condition? Option A primigravida, option B severe eclampsia, option C prolonged labor, option D none of the above. During active management of labor, ergometrin is contraindicated. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सीवियर eclampsia. Ergometrin is a medication commonly used during the active management of labor to help prevent postpartum hemorrhage by promoting uterine contractions. However, it is contraindicated in certain conditions and one of these conditions is severe eclampsia. So इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी severe eclampsia. The fetal movement felt by the mother is called. मदर को fetal movement जो फील होते हैं उससे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन बी क्विकनिंग, ऑप्शन सी गुडेल साइन, ऑप्शन डी हैगर साइन. The fetal movement felt by the mother is called, correct answer is option B quickening. Quickening refers to the first perception of fetal movement by the mother during pregnancy. It is the moment when a pregnant woman starts to feel the baby movement inside her womb. Quickening is a significant milestone in pregnancy and is usually felt by the mother between 18 to 25 weeks of gestation, although it can vary from one woman to another. So इसका correct answer is option B quickening. A family planning measure of using a diaphragm or Dutch cap is called. A family planning measure of using a diaphragm or Dutch cap is called option A natural method, option B barrier method, option C intrauterine contraceptive device, option D calendar method. A family planning measure of using a diaphragm or Dutch cap is called, correct answer is a barrier method. Using a diaphragm or Dutch cap as a family planning measure is considered a barrier method of contraception. Barrier method involve physically blocking or preventing the sperm from reaching the eggs, thus preventing fertilization. So इसका correct answer barrier method. Crowning occurs in option A first stage of labor, option B second stage of labor, option C third stage of labor, option D fourth stage of labor. Crowning occurs in, इसका correct answer होगा option B second stage of labor. Crowning refers to the stage of labor when the baby's head becomes visible at the vaginal opening during childbirth. It occurs during the second stage of labor, which is the pushing stage. The second stage of labor begins after the cervix is fully dilated and ends with the birth of the baby. So इसका correct answer होगा option B second stage of labor. Thanks for watching.
ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे कि आप लोग जिन ज़रूरत स्टूडेंट्स तक आप लोगों तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू सीरीज के इस भाग में। यह एमसीक्यू सीरीज एएनएम, जीएनएम भर्ती परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस से तैयार की गई है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस सही तरीके से मिल सके। अकॉर्डिंग टू फ्रूड, विच कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू द रियलिटी प्रिंसिपल। वास्तविकता सिद्धांत के अनुसार पर्सनालिटी के कंपोनेंट्स हैं। ऑप्शन ए आईडी, ऑप्शन बी ईगो, ऑप्शन सी सुपर ईगो, ऑप्शन डी ट्रस्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू फ्रूड, विच कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू द रियलिटी ऑफ प्रिंसिपल। ऑप्शन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ईगो। इसका करेक्ट आंसर ईगो है। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड्स साइकोएनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, द कंपोनेंट दैट ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू द रियलिटी प्रिंसिपल इज द ईगो। सो इसका करेक्ट आंसर इज ईगो। इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चंस के जवाब छुपे हुए हैं। पहला एक क्वेश्चन सिगमंड फ्रॉइड्स साइकोएनालिटिक थ्योरी के जनक जो कि सिगमंड फ्रॉइड के हैं, और दूसरा क्वेश्चन पर्सनालिटी जो ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू रियलिटी ऑफ पर्सनालिटी। इसका जो करेक्ट आंसर ईगो है। कॉप्लिक स्पोर्ट्स सिम्टम इज एसोसिएटेड विद। कॉप्लिक स्पोर्ट जो सिम्टम है किसके एसोसिएट है? ऑप्शन ए मीजल्स, ऑप्शन बी डिप्थीरिया, ऑप्शन सी चिकन पॉक्स, ऑप्शन डी पर्टूसिस। कॉप्लिक सिम्टम्स एसोसिएटेड विद, करेक्ट आंसर इज मीजल्स। कॉप्लिक स्पोर्ट्स जो सिम्टम है अब अपीयर होता है किसमें? मीजल्स में। कॉप्लिक स्पोर्ट्स आर स्मॉल white and bluish white spots that appear on the inside of the mouth, especially on the buccal mucosa. buccal mucosa यानी the inner lining of the cheek, इसमें कॉप्लिक स्पॉट्स सीन होते हैं। These spots are a characteristic symptom of measles, also known as rubella. They typically appear a few days before the onset of the measles rays. इसका कॉप्लिक स्पोर्ट्स का जो सिम्टम्स का एसोसिएटेड किसके हैं? मीजल्स के एसोसिएटेड हैं। विच टेबलेट इज गिवन अंडर डीवार्मिंग प्रोग्राम? अंडर डीवार्मिंग प्रोग्राम कौन सी टेबलेट दी जाती है? ऑप्शन ए पैरासीटामोल, ऑप्शन बी सेट्राजिन, ऑप्शन सी अमोक्सिलिन, ऑप्शन डी एल्बेंडाजोल। डीवार्मिंग प्रोग्राम के अंतर्गत कौन सी टेबलेट दी जाती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एल्बेंडाजोल। अंडर अ डीवार्मिंग प्रोग्राम, एल्बेंडाजोल इज कॉमनली गिवन एज अ टेबलेट टू ट्रीट एंड प्रिवेंट पैरासाइटिक वर्म इन्फेस्टेशन। पैरासाइटिक वर्म इन्फेस्टेशन से ट्रीट करने के लिए एल्बेंडाजोल टेबलेट दी जाती है। इट इज एन एंटी-एल्मेटिक मेडिकेशन दैट इज इफेक्टिव against a variety of intestinal worms include roundworms, hookworms, whipworms and pinworms. So इनका ट्रीटमेंट और मेडिकेशन के लिए एल्बेंडाजोल टेबलेट का इस्तेमाल यानी कि दी जाती है अंडर द प्रोग्राम डीवार्मिंग प्रोग्राम। मेडिकल मैनेजमेंट फॉर इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्लूड। मेडिकल मैनेजमेंट आईसीपी के लिए ऑप्शन ए एडमिनिस्टर मैनिटोल, ऑप्शन बी एडमिनिस्टर हाफ स्ट्रेंथ सलाइन, ऑप्शन सी एडमिनिस्टर प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स, ऑप्शन डी रिड्यूस द नंबर ऑफ ब्रीथ इन वेंटिलेटर। मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ आईसीपी इज, करेक्ट आंसर इज एडमिनिस्टर मैनिटोल। इसमें मैनिटोल को एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। medical emergency that can occur due to
various conditions affecting the brain such as traumatic brain injury, ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन हेमरेज। ये कुछ ऐसी कंडीशंस है जैसे कि एक्सीडेंट्स है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है, ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन हेमरेज ऐसी कंडीशन की वजह से हो सकती है। द गोल ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट इज रिड्यूस द इंट्राक्रैनियल प्रेशर एंड प्रिवेंट फर्दर डैमेज टू द ब्रेन। इसका जो मेन उद्देश्य है, गोल है, वो रिड्यूस इंट्राक्रैनियल प्रेशर है एंड प्रिवेंट फर्दर डैमेज टू द ब्रेन। जो इससे कॉम्प्लिकेशन से डैमेज हो सकते हैं ब्रेन के, उनको प्रिवेंट करना है। तो इसका मेन रीजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैनिटोल। सो 5 क्लीन प्रैक्टिस अंडर स्ट्रेटजीज फॉर एलिमिनेशन ऑफ नियोनेटल टेटनस इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट 5 क्लीन प्रैक्टिस अंडर स्ट्रेटजीज एलिमिनेशन ऑफ नियोनेटल टेटनस। ऑप्शन ए क्लीन सरफेस ऑफ द डिलीवरी, ऑप्शन बी क्लीन हैंड्स ऑफ द अटेंडेंट, ऑप्शन सी न्यू ब्लेड फॉर कॉर्ड कटिंग, ऑप्शन डी क्लीन एयरवेज। क्वेश्चन को सही तरीके से समझना है। यहाँ पर 5 क्लीन प्रैक्टिस अंडर स्ट्रेटजीज फॉर एलिमिनेशन ऑफ नियोनेटल टेटनस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी क्लीन एयरवेज। यानी कि जो क्लीन एयरवेज है ये ऑप्शन 5 क्लीन प्रैक्टिस में इंक्लूड नहीं है, यानी कि क्वेश्चन में पहले ही लिखा हुआ है एक्सेप्ट। सो 5 क्लीन प्रैक्टिस के अंदर 5 प्रैक्टिस होंगी। फर्स्ट क्लीन सरफेस ऑफ द डिलीवरी, क्लीन हैंड्स ऑफ द अटेंडेंट, क्लीन पेरिनियम ऑफ द मदर, न्यू ब्लेड फॉर कॉर्ड कटिंग, यूज ऑफ क्लीन कॉर्ड टाई। जो कॉर्ड को टाई करने का जो है वो भी क्लीन होना चाहिए। तो इसके 5 क्लीन प्रैक्टिस, ये 5 प्रैक्टिस को ध्यान में रखना है जब आपको 5 क्लीन प्रैक्टिस के अंदर स्ट्रेटेजीज एलिमिनेशन ऑफ नियोनेटल टेटनस को एलिमिनेट करने के लिए ये 5 जो क्लीन प्रैक्टिस है उनको माइंड में रखकर आपको क्वेश्चन का जवाब देना है। अ ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पीडियाट्रिक एड्स इज अ ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पीडियाट्रिक एड्स। जो पीडियाट्रिक एड्स है उसके ट्रीटमेंट में कौन सी ड्रग इस्तेमाल की जाएगी? ऑप्शन ए प्रोकाइन पेनिसिलिन, ऑप्शन बी नेविरापाइन, ऑप्शन सी एजिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन डी एसाइक्लोवियर। पीडियाट्रिक ट्रीटमेंट के लिए जो एड्स के पीडियाट्रिक ट्रीटमेंट के लिए ड्रग यूज की जाती है नेविरापाइन यूज की जाती है। नेविरापाइन इज अ ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पीडियाट्रिक एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम और HIV human immunodeficiency virus infection in children. Nevirapine is used as a part of combination therapy to suppress the replication of HIV, slow down the progression of the disease। यानी कि जो replication of HIV है उसको और डिजीज को प्रोग्रेस होने से स्लो करने के लिए एंड इम्प्रूव द इम्यून फंक्शन इन चिल्ड्रन विद HIV एड्स। सो इसमें जो ड्रग यूज की जाती है पीडियाट्रिक एड्स के अंदर नेविरापाइन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी नेविरापाइन। नेविरापाइन इज अ ड्रग्स जो कि HIV को स्लो डाउन और उसकी प्रोग्रेस को स्लो डाउन करने के लिए किया जाता है और जो इसके जो वायरस है उसकी कॉम्बिनेशन थे उसको रेप्लिकेशन ऑफ वायरस को स्लो करने के लिए। द फर्स्ट डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज गिवन टू अ बेबी। द फर्स्ट डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की फर्स्ट डोज दी जाती है बेबी को। ऑप्शन ए एट 6 वीक, ऑप्शन बी एट 10 वीक्स, ऑप्शन सी एट बर्थ, ऑप्शन डी एट 8 वीक्स। जो फर्स्ट डोज है हेपेटाइटिस की वैक्सीन की वो दी जाती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी एट बर्थ। द फर्स्ट डोज ऑफ द हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज टिपिकली गिवन टू अ बेबी एट बर्थ। जन्म के दौरान ही फर्स्ट डोज दे दी जाती है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की। दिस इज डन टू प्रोवाइड अर्ली प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हेपेटाइटिस बी वायरस विच कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू हर बेबी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। इसके प्रोटेक्शन के लिए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को डिलीवरी के दौरान यानी दे दी जाती है, एट बर्थ दे दी जाती है, जिससे कि प्रोटेक्शन हो सके अगर ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू बेबी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म के दौरान अगर ट्रांसमिट होने की संभावना हो।
द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डेंगू फीवर इज, डेंगू फीवर का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है ऑप्शन ए एंट्रिक वायरस, ऑप्शन बी एर्बो वायरस, ऑप्शन सी वेरियोला वायरस, ऑप्शन डी इन्फ्लुएंजा वायरस। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डेंगू फीवर इज, इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है डेंगू फीवर का, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एर्बो वायरस। द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डेंगू फीवर इज एन एर्बो वायरस। इसका मेन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वह है एर्बो वायरस है। स्पेशली द डेंगू वायरस जो है स्पेशली एर्बो वायरस में ही, द डेंगू वायरस इज प्राइमरली ट्रांसमिटेड टू वुमन बाय द एडिस मॉस्किटो। जो डेंगू वायरस है वो प्राइमरली ट्रांसमिट होता है किसके थ्रू होता है, एडिस जो मॉस्किटो के थ्रू होता है। पर्टिकुलरली द एडिस एगिप्टी स्पेसीज, जो पर्टिकुलरली कौन सी स्पेसीज के द्वारा होता है, एगिप्टी स्पेसीज के द्वारा फैलता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन छुपे हुए हैं। एक तो डेंगू फीवर किसके द्वारा होता है, तो उसका पहला एडिस एगिप्टी स्पेसीज मॉस्किटो के द्वारा, और दूसरा जो है एर्बो वायरस। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी हो, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसकी कमी से होता है, ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी थायमिन, ऑप्शन सी एसिटिक एसिड, ऑप्शन डी विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड। ये जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है वो विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड की कमी से होता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज अ टाइप ऑफ एनीमिया characterized by the presence of unusually large, immature and dysfunction red blood cells called megaloblast. Unusually large, immature and dysfunctional RBC cells जिनको बोलते हैं मेगालोब्लास्ट। This condition is primarily caused by deficiency in two essential vitamins, vitamin B12, cobalamin and folic acid जिसे फोलेट बोलते हैं। इन दो की डेफिशिएंसी की वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड। इसकी जो सेल्स होती है अनयूजुअली इमेच्योर एंड डिसफंक्शन आरबीसी कॉल्ड, जिसको हम मेगालोब्लास्ट कहते हैं। द MDT ड्रग इज द ट्रीटमेंट फॉर, MDT ड्रग किसके ट्रीटमेंट की में इस्तेमाल की जाती है, ऑप्शन ए टीबी, ऑप्शन बी लेप्रोसी, ऑप्शन सी HIV, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। द MDT इज ट्रीटमेंट फॉर टीबी लेप्रोसी, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लेप्रोसी। MDT यानी मल्टी ड्रग थेरेपी इज अ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट रेजिमेन यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी आल्सो नोन एज हैंसन डिजीज। इसको हम हैंसन डिजीज के नाम से भी जानते हैं। जो लेप्रोसी है उसको हैंसन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। लेप्रोसी इज ए क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। इस क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। एक तो लेप्रोसी का अनदर नेम क्या है, तो उसका अनदर नेम हैंसन डिजीज है। किसके कारण से होता है, बैक्टीरिया के कारण से होता है। कौन से बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे की वजह से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों का भला हो सके। थैंक्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MCQ सीरीज के इस भाग में। यह MCQ सीरीज मल्टीपल क्वेश्चंस के से तैयार की गई है। इस सीरीज में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ANM GNM भर्ती परीक्षा के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। हेपेटाइटिस वायरस दैट स्प्रेड बाय द फीकल ओरल रूट। हेपेटाइटिस वायरस दैट स्प्रेड बाय द फीकल ओरल रूट। ऑप्शन ए हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस सी, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस डी। इसका करेक्ट आंसर होगा हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन A, hepatitis A. Hepatitis A is the hepatitis virus that spread primarily by the fecal oral route. It is highly contagious liver infection caused by the hepatitis A virus. The virus is present in the stool of infected
individual and can be transmitted to others through contaminated food. So hepatitis virus that is spread by the fecal oral route, hepatitis A. The important clinical parameters for assessing the degree of hypoxia at birth is important clinical parameter for assessing the degree of hypoxia at birth is option A respiratory rate, option B color of skin, option C heart rate, ऑप्शन डी मसल टोन। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी कलर ऑफ स्किन। असेसिंग द कलर ऑफ द स्किन इज एन इम्पोर्टेंट clinical parameter for assessing the degree of hypoxia at birth. The degree of hypoxia at birth. Skin color changes can provide valuable information about the oxygenasis status of an individual. So इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कलर ऑफ स्किन। Hemophilia is a hemophilia A is a option A Christmas disease, option B factor 8 deficiency, option C factor 9 deficiency, option D non-Willebrand disease. Hemophilia A is answer is option B factor 8 deficiency. Hemophilia is a genetic bleeding disorder characterized by a deficiency or dysfunction of clotting factor 8, which is necessary for normal blood clotting. It is the most common type of hemophilia and is caused by mutation in the gene that produce factor 8. So इसका करेक्ट आंसर होगा फैक्टर 8 डेफिशिएंसी। हीमोफीलिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसको जो कि क्लॉटिंग फैक्टर 8 की वजह से होती है, जो नेसेसरी फॉर नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत आवश्यक है। It is the most common type of hemophilia and is caused by mutation in the gene that produce factor 8. Floating tip of the iceberg represents. Floating tip of the iceberg represent. Option A clinical cases, option B afferent cases, option C latent cases, option D undiagnosed cases. Floating tip of the iceberg represents. Correct answer is option D undiagnosed cases. The phrase floating tip of the iceberg is often used metaphorically to represent a situation where only a small visible portion of a larger problem is apparent while is much larger and hidden portion remains unseen or unrecognized. In the context of the options provided, the floating tip of the iceberg would represent undiagnosed cases. So इसका correct answer होगा undiagnosed cases. The term mastication means, mastication का मतलब ऑप्शन ए डाइजेशन, ऑप्शन बी absorption, ऑप्शन सी assimilation, ऑप्शन डी chewing. करेक्ट आंसर होगा इसका chewing. The term mastication refers to the process of chewing food. During mastication, food is broken down into small pieces by the action of the teeth and mixed with saliva to form a bolus. यानी चबाने की जो प्रक्रिया है उसे मास्टिकेशन कहेंगे, जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में खाने को तोड़ देके उसमें सलाइवा मिक्स कर देते हैं in the form of bolus. Chewing is an essential part of the digestive process as it increases the surface area of the food, making it easier to the further broken down and digest by enzymes in the stomach and small intestine. Cardinal sign of inflammation. Inflammation का कार्डिनल साइन इनमें से नहीं है। ऑप्शन ए पेन, ऑप्शन बी रेडनेस, ऑप्शन सी स्वेलिंग, ऑप्शन डी हाइपोथर्मिया। कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन आर ऑल एक्सेप्ट। क्वेश्चन को समझकर जवाब देना है। इसका करेक्ट आंसर है कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन एक्सेप्ट, यानी इनमें से कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन नहीं है। ऑप्शन डी हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया इसका कार्डिनल साइन नहीं है। द कार्डिनल साइन ऑफ inflammation are a set of
classic sign and symptoms that are commonly observed during an inflammatory response in the body: pain, redness, swelling. जब भी inflammatory process response होता है तो उसका कार्डिनल साइन होगा पेन, रेडनेस और स्वेलिंग, हाइपोथर्मिया नहीं होगा। Which of the following danger signs should be informed immediately during the antepartum period? एंटीपार्टम पीरियड के दौरान अगर डेंजर साइन नजर आता है तो शुड बी इन्फॉर्म्ड इमीडिएटली। ऑप्शन ए ब्लड विजन, ऑप्शन बी नासल स्टिफनेस, ऑप्शन सी ब्रेस्ट टेंडरनेस, ऑप्शन डी कॉन्स्टिपेशन। अगर डेंजर साइन अपीयर होते हैं या नजर आते हैं एंटीपार्टम पीरियड के दौरान तो शुड बी इन्फॉर्म ड्यूरिंग, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्लड विजन। ड्यूरिंग द antepartum period, the period before childbirth, it is important for pregnant individual to be aware of any danger sign or symptom that may indicate a potential complication with the pregnancy. So इसका correct answer is blood vision. What is the color coding of the bag in hospital to dispose of woman anatomical waste such as body part? What is the color coding of the bag in hospital to dispose of woman anatomical waste such as body part? Option A yellow, option B black, option C red, option D blue. कलर कोडिंग के अनुसार बायोमेडिकल वेस्ट कलर कोडिंग के अनुसार एनाटॉमिकल वेस्ट को कौन से कलर की बीन्स में डिस्कार्ड किया जाएगा? करेक्ट आंसर येलो, येलो बीन में इसको डिस्कार्ड किया जाएगा। स्टेनिंग टेक्निक यूज्ड इन RNTCP इज, स्टेनिंग टेक्निक जो यूज की जाती है RNTCP में, ऑप्शन ए जेल नेल्सन स्टेन, ऑप्शन बी ग्राम स्टेन, ऑप्शन सी जिम्सा स्टेन, ऑप्शन डी पास PAS। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जेल नेल्सन स्टेन। द जेल नेल्सन स्टेनिंग टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड इन द रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम RNTCP फॉर द डिटेक्शन ऑफ एसिड पास्ट बेसिलाई इन स्पुटम सैंपल्स। सो इसके लिए जेल नेल्सन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज स्पेशलाइज्ड स्टेनिंग मेथड दैट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द प्रेजेंस ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, द बैक्टीरियम रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्यूबरकुलोसिस, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है वो रेस्पॉन्सिबल है ट्यूबरकुलोसिस के लिए। द इक्विपमेंट यूज्ड इन द एग्जामिनेशन ऑफ ईयर इज कॉल्ड, कान का एग्जामिनेशन, ईयर का एग्जामिनेशन करने के लिए जो इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है उसे उसका नाम है ऑप्शन ए लेरिंगोस्कोप, ऑप्शन बी ओटोस्कोप, ऑप्शन सी प्रोटोस्कोप, ऑप्शन डी एंडोस्कोप। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ओटोस्कोप। द इक्विपमेंट यूज्ड इन द एग्जामिनेशन ऑफ द ईयर इज कॉल्ड एन ओटोस्कोप। एन ओटोस्कोप इज हैंडल्ड device that consists of a light source and a magnifying lens. It is especially designed for examination the external ear canal and the eardrum tympanic membrane. So जो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है इक्विपमेंट उसका नाम है ओटोस्कोप। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स फॉर वाचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है MCQ सीरीज के इस भाग में। यह MCQ सीरीज ANM, GNM नर्सिंग भर्ती परीक्षा के लिए विशेष रूप से इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन से तैयार की गई है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। The solution used to disinfect the bed linen of HIV infected patient, option A Savlon, option B sodium hypochlorite, option C Dettol, option D Sidex. The solution used to disinfect the
बेड लिनेन ऑफ HIV इन्फेक्टेड पेशेंट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोडियम हाइपोक्लोराइड। द सोडियम हाइपोक्लोराइड commonly known as bleach is an effective disinfectant that can be used to disinfect bed linen and other surface contaminated with HIV or other infectious agents. It has strong antimicrobial properties and is widely used in healthcare settings for disinfection purpose. HIV इन्फेक्टेड पेशेंट की बेड लिनेन को डिसइंफेक्ट करने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। यह कॉमनली नोन एज ब्लीच के नाम से भी इसको जानते हैं। यह इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट है जो कि एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज से हैं, जो कि सामान्य डिसइंफेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। सीवियर जॉइंट पेन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? सीवियर जॉइंट पेन एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग। सीवियर जॉइंट पेन किससे एसोसिएटेड है? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी फ्लू, ऑप्शन सी चिकनगुनिया एंड डेंगू, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी चिकनगुनिया एंड डेंगू। चिकनगुनिया एंड डेंगू आर वायरल इन्फेक्शंस ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो। दोनों ही वायरल इन्फेक्शंस हैं जो कि मॉस्किटो के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। दे आर स्पेशली known to cause severe joint pain as a prominent symptom, often affecting multiple joints in the body. So इसका करेक्ट आंसर होगा चिकनगुनिया एंड डेंगू। मार्च 8 इज सेलिब्रेटेड एज। मार्च 8 सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन ए राजस्थान डे के नाम से, ऑप्शन बी वर्ल्ड वुमेन्स डे के नाम से, ऑप्शन सी WHO डे के नाम से, ऑप्शन डी UN डे के नाम से। मार्च 8 इज सेलिब्रेटेड एज, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वर्ल्ड वुमेन्स डे। मार्च 8 को वर्ल्ड वुमेन्स डे के नाम से, विश्व महिला दिवस के नाम से जाना जाता है। मार्च 8 इज सेलिब्रेटेड ग्लोबली एज इंटरनेशनल वुमेन्स डे और वर्ल्ड वुमेन्स डे। It is a day dedicated to honoring the achievements of women and promoting gender equality and women's right. So March 8 is celebrated on विश्व महिला दिवस, वर्ल्ड वुमेन्स डे के नाम से जाना जाता है। Which part of the eye is transplanted from the eyes that are donated? आँख का वो कौन सा भाग डोनेटेड के द्वारा डोनेट किया जाता है, उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है? ऑप्शन ए रेटिना, ऑप्शन बी कॉर्निया, ऑप्शन सी एंटायर आईबॉल, ऑप्शन डी आइरिस। विच पार्ट ऑफ द आई इज ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम द आईज दैट आर डोनेटेड? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कॉर्निया। द पार्ट ऑफ द आई दैट इज कॉमनली ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम डोनेटेड आई इज द कॉर्निया। The cornea is the transparent dome-shaped from surface of the eye that covers the iris, pupils and anterior chamber. So इसका correct answer cornea है। The national program RNTCP is related to which disease condition? नेशनल प्रोग्राम RNTCP कौन सी बीमारी, कौन सी कंडीशन से रिलेटेड है? ऑप्शन ए नियोनेटल टेटनस, ऑप्शन बी मीजल्स, ऑप्शन सी ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन डी HIV। RNTCP प्रोग्राम किस बीमारी से रिलेटेड है? इसका करेक्ट आंसर होगा TB, ट्यूबरकुलोसिस। द नेशनल प्रोग्राम RNTCP स्टैंड फॉर रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। It is a program implemented by the Government of India to control and combat tuberculosis TB in the country. Correct answer is TB. The primary health center PHC is managed by, प्राइमरी हेल्थ सेंटर मैनेज किया जाता है। ऑप्शन ए हेल्थ इंस्पेक्टर, ऑप्शन बी ANM, ऑप्शन सी मेडिकल ऑफिसर,
ऑप्शन डी BCMO, प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC मैनेज बाय, इसका करेक्ट आंसर होगा मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज MOIC। द प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC इज टिपिकली मैनेज्ड बाय मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज। द मेडिकल ऑफिसर इज a qualified doctor who is responsible for overseeing the healthcare services provided at the PHC। सो इसका इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर होता है। स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। स्कर्वी इज कॉज्ड बाय ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? आंसर होगा इसका ऑप्शन सी विटामिन सी। स्कर्वी is caused due to the deficiency of vitamin C. Vitamin C also known as ascorbic acid. विटामिन सी को ascorbic acid के नाम से भी जानते हैं। Is an essential nutrient that plays a crucial role in various bodily functions, including the synthesis of collagen, absorption of iron, and maintenance of connective tissue. So scurvy is caused due to the deficiency of vitamin C. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। IYCF infant and young child feeding is related to which of the following? IYCF is related to which of the following? Option A, initiation of breastfeeding which within 1 hour of birth. Initiation of breastfeeding within 1 hour of birth. Option B, exclusive breastfeeding for the first 6 months. Option C, complementary feeding starting on completion of 6 months of age. Option D, all of the above. IYCF is related to which of the following? इसका करेक्ट आंसर होगा all of the above। इसका करेक्ट आंसर all of the above, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 hour of birth। ऑप्शन बी exclusive breastfeeding for the first 6 months, complementary feeding starting on completion of 6 months of age। तीनों ही आंसर इसके सही है। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा all of the above। न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर्स NBCC have been established at। न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर कहाँ पर स्टैब्लिश किए जाते हैं? ऑप्शन ए ऑल सब सेंटर्स, ऑप्शन बी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, ऑप्शन सी ऑल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, ऑप्शन डी ऑल डिलीवरी पॉइंट। न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर्स कहाँ स्टैब्लिश किए गए हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल डिलीवरी पॉइंट। जहां पर भी डिलीवरी पॉइंट है वहां पर NBCC एस्टैब्लिश किए गए हैं। दीज कॉर्नर्स आर डिजाइन टू एंश्योर दैट न्यूबॉर्न्स रिसीव इमीडिएट एंड अप्रोप्रिएट केयर एज वेल एज प्रमोट एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर प्रैक्टिस। सो इसका करेक्ट आंसर ऑल डिलीवरी पॉइंट्स पर न्यूबॉर्न बेबी केयरनर एस्टैब्लिश किए गए हैं। HBNC प्रोग्राम कवर्स द चाइल्ड अंटिल द एज ऑफ। न्यू HBNC प्रोग्राम कवर द चाइल्ड अंटिल द एज ऑफ। ऑप्शन A 2 months, ऑप्शन B 6 months, ऑप्शन C 1 year, ऑप्शन D 5 years। HBNC programs covers the child until the age of। इसका करेक्ट आंसर होगा 6 month। The HBNC plus program home based newborn care plus program covers the child until the age of 6 months। The program focuses on providing comprehensive care and support for newborns and their mothers in the first 6 months of the child's life। So इसका करेक्ट आंसर होगा 6 months। Thanks for watching। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग सब स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका MCQ सीरीज के इस भाग में। यह सीरीज नर्सिंग भर्ती परीक्षा के लिए विशेष रूप से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से तैयार की गई है। वीडियो के अंत तक बने रहिए जिससे कि आप सबको इस सीरीज का फायदा मिल सके।
On a fixed day, service for women and child health care are provided at the आंगनवाड़ी केंद्र. This day is called. महिला और बाल स्वास्थ्य देखभाल की एक निश्चित दिन सेवा आंगनवाड़ी केंद्र पर प्रदान की जाती है. इस दिन को कहा जाता है. ऑप्शन ए आरोग्य हेल्थ कैंप, ऑप्शन बी मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे MCHN डे, ऑप्शन सी स्वास्थ्य दिवस, ऑप्शन डी पोषाहार दिवस. महिला और बाल स्वास्थ्य देखभाल की एक निश्चित दिन सेवा आंगनबाड़ी केंद्र पर प्रदान की जाती है. इस दिन को कहा जाता है. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे. MCHN डे कहा जाता है उस दिन को. एलोपेशिया इज commonly seen after in which of the following drug therapy. एलोपेशिया निम्नलिखित दवा चिकित्सा के बाद आमतौर पर देखा जाता है. ऑप्शन ए एंटीबायोटिक थेरेपी, ऑप्शन बी कीमोथेरेपी, ऑप्शन सी रेडियोथेरेपी, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव. एलोपेशिया निम्नलिखित दवा चिकित्सा के बाद आमतौर पर देखा जाता है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी कीमोथेरेपी. एलोपेशिया कीमोथेरेपी के बाद आमतौर पर संभावना होती है. एलोपेशिया विच रेफर्स टू हेयर लॉस और ब्लैंडनेस इज कॉमनली सीन एज ए साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी. ये साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट है एलोपेशिया यानी कि हेयर लॉस. कीमोथेरेपी ड्रग्स आर डिजाइंड टू टारगेट एंड किल रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स इंक्लूडिंग कैंसर सेल्स. ये कीमोथेरेपी कैंसर सेल्स को टारगेट करके दी जाती है. What should be done to decontaminate the articles used in the labor room to conduct delivery? प्रसव करने के लिए लेबर रूम में उपयोग किए जाने वाले सामग्री को शुद्ध करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? What should be done for decontaminate the articles used in the labor room to conduct delivery? Option A wash hands with detergent and water. Option B place in 0.5% chlorine solution for 10 minutes. Option C place in 5% chlorine solution for 60 minutes. Option D wash with tap water. प्रसव के लिए लेबर रूम में उपयोग किए जाने वाले सामग्री को शुद्ध करने के लिए डिसइंफेक्ट करने के लिए क्या किया जाना चाहिए है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी प्लेस इन 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन for 10 minutes. The articles used in the labor room such as instruments, surface and equipments can be immersed in the chlorine solution for a duration of 10 minutes. This helps kill or inactivate microorganisms including bacteria and virus, reducing the risk of infection. यानी कि इन इंस्ट्रूमेंट्स को, सरफेस को, आर्टिकल्स को, इक्विपमेंट्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन में 10 मिनट तक रखा जाता है. डिस्टेंट विजन इज असेस्ड बाय यूजिंग. डिस्टेंट विजन का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित का उपयोग किया जाता है. डिस्टेंट विजन इज असेस्ड बाय यूजिंग ऑप्शन ए कंफर्मेशन टेस्ट, ऑप्शन बी एर्सबर्ग टेस्ट, ऑप्शन सी जैगर्स कार्ड, ऑप्शन डी स्नेल चार्ट. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी स्नेल चार्ट. डिस्टेंट विजन इज कॉमनली असेस्ड यूजिंग अ स्नेल चार्ट. इट इज चार्ट विद rows of letters or symbols of varying size. The person being tested is asked to stand or sit at a specific distance from the chart and read the letters or symbols from the largest size at the top to the smallest size at the bottom. Eyes need to be covered during phototherapy session because फोटोथेरेपी सत्र के दौरान आंखों को ढका जाना चाहिए क्योंकि टू मेक श्योर दैट द न्यूबॉर्न हैज क्लोज्ड द आईज वेल. ऑप्शन बी रिड्यूस ओवर स्टिमुलेशन फ्रॉम ब्राइट कलर्स. ऑप्शन सी प्रिवेंट इंजुरी टू कंजक्टिवा एंड रेटिना. ऑप्शन डी
लिमिट एक्सेसिव रैपिड आई मूवमेंट्स एंड एंजाइटी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रिवेंट इंजुरी टू कंजक्टिवा एंड रेटिना। फोटोथेरेपी सत्र के दौरान आंखों को ढका जाना चाहिए, क्योंकि आंखों की इंजुरी, कंजक्टिवा की इंजुरी से और रेटिना की इंजुरी से बचाने के लिए। ड्यूरिंग अ फोटोथेरेपी सेशन वेयर न्यूबॉर्न्स आर एक्सपोज्ड टू specific wavelength of light to treat conditions like jaundice, it is important to cover their eyes. This is done to protect the delicate tissues of the eyes, specifically the conjunctiva, the thin membrane covering the front of the eye and the retina, the light sensitive tissue at the back of the eye from potential damage caused by the bright light. In diarrhea, which of the following supplementation should be done? दस्त डायरिया में निम्नलिखित में से किस सप्लीमेंटेशन की जरूरत होनी चाहिए? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी कैल्शियम। डायरिया के दौरान निम्नलिखित में से किस सप्लीमेंटेशन की जरूरत होनी चाहिए? इसका करेक्ट आंसर होगा सी जिंक। डायरिया कैन लीड टू फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इन द बॉडी, including the loss of important nutrients. Zinc supplementation has been found to be effective in reducing the duration and severity of diarrhea, particularly in children. डायरिया में जिंक का सप्लीमेंटेशन दिया जाता है। The most commonest cause of blindness in India is, भारत में अंधापन का सबसे सामान्य मुख्य कारण है। ऑप्शन ए विटामिन ए डेफिशिएंसी, ऑप्शन बी कैटरैक्ट, ऑप्शन सी ग्लूकोमा, ऑप्शन डी ट्रेकोमा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कैटरैक्ट। कैटरैक्ट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। अ कैटरैक्ट इज अ क्लाउडिंग ऑफ द नेचुरल लेंस ऑफ द आई which leads to blurred vision and if left untreated can eventually cause blindness. So भारत में मुख्य commonest cause of blindness in India is a cataract. Meniere's disease is related to, Meniere's बीमारी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आई, ऑप्शन बी ईयर, ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑप्शन डी डाइजेस्टिव सिस्टम। Meniere's disease is related with option B ear. Meniere's disease is a disorder of the inner ear that affects balance and hearing. It is characterized by recurring episode of vertigo, a spinning sensation, hearing loss, tinnitus, ringing in the ear, and feeling of fullness or pressure in the affected ear. So Meniere's बीमारी किससे संबंधित है? ईयर से संबंधित है। द स्पेस बिटवीन अरेक्नॉइड एंड पायामेटर इज कॉल्ड, अरेक्नॉइड और पायामेटर के बीच के स्थान को कहते हैं। ऑप्शन ए एपिड्यूरल, ऑप्शन बी सबड्यूरल, ऑप्शन सी सब अरेक्नॉइड, ऑप्शन डी एक्स्ट्रा ड्यूरल। स्पेस बिटवीन अरेक्नॉइड एंड पायामेटर इज कॉल्ड सब अरेक्नॉइड। जो दोनों के बीच के स्थान को सब अरेक्नॉइड कहा जाता है। द सब अरेक्नॉइड स्पेस इज द स्पेस बिटवीन द अरेक्नॉइड मैटर एंड द पायामेटर विच आर टू ऑफ थ्री मेम्ब्रेन्स दैट सराउंड एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो इसका करेक्ट आंसर सब अरेक्नॉइड होगा। IOP increase in, intraocular pressure is increase in, option A in conjunctivitis, option B in glaucoma, option C in cataract, option D in style. IOP increase in, correct answer is option B in glaucoma. Intraocular pressure IOP refers to the fluid pressure inside the eye. It is influenced by the balance between the production and drainage of aqueous humor, the fluid that fills the anterior chamber of the eye. So इसका जो करेक्ट आंसर होगा ग्लूकोमा। नॉर्मल IOP is 10 to 21 mm of Hg. थैंक्स फॉर वाचिंग। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारे क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। आप लोगों के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब
like and comment. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू सीरीज के इस भाग में। यह एमसीक्यू सीरीज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के मिलाकर बनाई गई है, जो कि नर्सिंग भर्ती परीक्षा एएनएम जीएनएम के लिए विशेष तौर से तैयार की गई है। इन क्वेश्चंस के जो अभी क्वेश्चंस आने वाले हैं या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को ध्यान में रखकर ये सीरीज तैयार की गई है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का फायदा मिल सके। पेंटावेलेंट वैक्सीन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट। पेंटावेलेंट वैक्सीन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट। जो पेंटावेलेंट वैक्सीन है, निम्नलिखित बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करती है। ऑप्शन ए डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा। ऑप्शन बी पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस। ऑप्शन सी मीजल्स, मम्स, रूबेला, टीबी, पोलियो। ऑप्शन डी डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, मीजल्स, पोलियो। पेंटावेलेंट वैक्सीन निम्नलिखित बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करती है, यानी कि जो पेंटावेलेंट वैक्सीन है वो किन किन बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पेंटावेलेंट वैक्सीन डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा, इन 5 बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करती है। यानी कि जो पेंटावेलेंट वैक्सीन है वो 5 बीमारियों की वैक्सीन बनाई गई है। इन इंडिया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन। इंडिया में, भारत में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी 1974, 1978, 1985, 1919। ये क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आता है बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसके जो आंसर है, करेक्ट आंसर होगा 1985। भारत में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की शुरुआत 1985 में की गई थी। अब यहाँ पर इसमें कंफ्यूजन क्या होता है, EPI यानी एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, EPI वाज लॉन्च्ड इन 1978। जो भारत में EPI लॉन्च हुआ था 1978 में हुआ था। इट वाज रीनेम्ड एज UIP, जो बाद में नाम चेंज कर दिया गया UIP के नाम से 1985 में। व्हेन इट रीच वाज एक्सपेंडेड बियॉन्ड अर्बन एरिया, फिर ये सभी यानी यूनिवर्सल कर दिया गया था प्रोग्राम, इसलिए ये 1985 में इसका नाम रीनेम कर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन को मैंने आपको पहले बोला था कि कंफ्यूजन क्रिएट करता है, यानी कि शुरुआत EPI से हुई थी 1978 में और UIP बना था ये 1985 में। तो इसका करेक्ट आंसर अगर EPI आता है तो 1978 होगा, अगर UIP आता है तो 1985 होगा। तो एक क्वेश्चन में मैंने आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन के जवाब तैयार किए हैं। फर्स्ट सेंसेशन लॉस ड्यूरिंग द लेप्रोसी इज। कुष्ठ रोग के दौरान पहली अनुभूति हानि होती है, यानी कि जो पहला सेंसेशन लॉस होता है लेप्रोसी में, पहला जो सेंसेशन लॉस शुरू होता है। ऑप्शन ए टच, ऑप्शन बी टेम्परेचर, ऑप्शन सी पेन, ऑप्शन डी प्रेशर। कुष्ठ रोग के दौरान पहली अनुभूति हानि होती है, यानी सेंसेशन का लॉस होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द फर्स्ट सेंसेशन दैट इज लॉस्ट। पेशेंट कैन नॉट सेंस एक्सट्रीम hot or cold. The next sensation lost is light touch, then pain and finally deep pressure. So लेप्रोसी के दौरान पहला जो सेंसेशन स्टार्ट लॉस शुरू होता है वो टेम्परेचर, यानी कि ना तो पेशेंट हीट, हॉट और कोल्ड को सेंस नहीं कर पाता है। आर्टिमिनीज कॉम्बिनेशन थेरेपी ACT गिवन इन। ACT की निम्नलिखित में दिया जाता है। जो ACT है वो किस बीमारी में दिया जाता है। ऑप्शन ए लेप्रोसी, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी माइकोट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन डी स्मॉल पॉक्स। तो आप लोगों को याद आ रहा होगा ACT किस में दिया जाता है, कमेंट करिए, देखता हूं मैं कितने लोगों का सही से जवाब आता है। ACT की जो आर्टिमिनीज में जो कॉम्बिनेशन थेरेपी है किस बीमारी में दिया जाता है।
तो करेक्ट आंसर, इसका जो करेक्ट आंसर होगा मलेरिया। एसीटी मलेरिया में यूज की जाती है एज ए ट्रीटमेंट फॉर मलेरिया। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ आर्टेमिनिज्म बेस्ड ड्रग्स विद अदर एंटी मलेरियल मेडिकेशन। सो ये मेडिकेशन एसीटी जो कॉम्बिनेशन थेरेपी है वो मलेरिया में दिया जाता है। The definition of health by WHO includes all except। डेफिनेशन जो WHO की डेफिनेशन में इनमें से छोड़कर है, यानी WHO द्वारा स्वास्थ्य की जो परिभाषा में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल है। ऑप्शन ए रिप्रोडक्शन, ऑप्शन बी मेंटल, ऑप्शन सी फिजिकल, ऑप्शन डी सोशल। आपको लग रहा होगा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चनों में आप लोगों को, यानी बहुत सारे जो होते हैं ये डिसाइडेड क्वेश्चंस होते हैं जो कंपटीशन में आगे बढ़ाते हैं या फिर नुकसान कराते हैं, माइनस मार्किंग कराते हैं। तो इसका WHO द्वारा स्वास्थ्य की परिभाषा में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल है। आप सबको याद होगी WHO के द्वारा जो हेल्थ की परिभाषा दी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट करिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन को छोड़कर बाकी सभी शामिल है। WHO की परिभाषा मैं आप लोगों के सामने एक बार से रख देता हूं। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। यानी कि इसमें रिप्रोडक्शन शामिल नहीं है। बाकी उसमें जो बाकी के जो ऑप्शन था मेंटल, फिजिकल, सोशल, ये तीनों एलिमेंट इसमें शामिल है, इसलिए हमें इसका करेक्ट आंसर छोड़कर था रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन इसमें शामिल नहीं है। Which one of the following is not a feature of मरासमस? निम्नलिखित में से कौन सा मरासमस की विशेषता नहीं है? जो क्वाशियोर्कर मरासमस दो प्रकार का जो PEM होता है, तो इनमें से पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मरासमस, यानी निम्नलिखित में से कौन सा मरासमस की फीचर नहीं है। ऑप्शन ए एडिमा, ऑप्शन बी मसल वेस्टिंग, ऑप्शन सी श्रिवल्ड स्किन, ऑप्शन डी मिनिमल फिजिकल एक्टिविटी। मरासमस की विशेषता नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एडिमा। एडिमा मरासमस की विशेषता नहीं है। मरासमस इज अ सीवियर फॉर्म ऑफ malnutrition that occurs due to a deficiency of both calories and protein. It is typically affects young children and infants. So इसमें मरासमस की विशेषता दिखाने के लिए मैंने एक इमेज भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हुई है। तो आप यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि क्वाशियोर्कर और मरासमस में क्या डिफरेंस था, और इसमें से जो विशेषता नहीं है वो एडिमा वाली विशेषता नहीं है। बाइटोट स्पॉट इज अ साइन ऑफ डेफिशिएंसी। बाइटोट स्पॉट इज अ साइन ऑफ डेफिशिएंसी। बाइटोट स्पॉट किसकी कमी का संकेत है? डेस डेस किसकी कमी का संकेत है? ऑप्शन ए विटामिन B12, ऑप्शन बी विटामिन ई, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन डी। बाइटोट्स जो स्पॉट है किसकी डेफिशिएंसी का संकेत है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन ए। जो बाइटोट्स स्पॉट होता है विटामिन ए की कमी की वजह से एंड डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। यहाँ पर मैंने दो इमेज आप लोगों की लगा रखी है। आप लोगों को ये क्वेश्चन आ रहा होगा बाइटोट्स होता क्या है? तो बाइटोट्स एक प्रकार का फोम जैसा व्हाइट ग्रेइश पैच आंखों के जो भाग है उसके अंदर आप लोगों को दिखाई देता है, जो कि एक बाइटोट का स्पॉट का साइन है। बाइटोट स्पॉट इज ए क्लिनिकल साइन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। यह विटामिन ए डेफिशिएंसी का एक क्लिनिकल साइन है। बाइटोट स्पॉट आर फोमी व्हाइट और ग्रेइश पैचेस दैट अपीयर ऑन द कंजक्टिवा। जो कंजक्टिवा होता है भाग, उसमें ये आपको बाइटोट स्पॉट दिखाई देता है। द थिन ट्रांसपेरेंट membrane covering the white part of the eye due to a lack of vitamin। किसकी कमी की वजह से? विटामिन ए की कमी की वजह से बाइटोट स्पॉट होता है, और आप यहाँ पर इसको देखकर भी पहचान गए होंगे। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज एक्सप्रेस्ड
इन टर्म्स ऑफ लाइव बर्थ, मृत्यु दर को जीवित जन्मों के रूप में व्यक्त किया जाता है। जो MMR है वो एक्सप्रेस की जाती है ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 10,000, ऑप्शन सी 1 लाख, ऑप्शन डी 10 लाख। मातृ मृत्यु दर को जन्मों के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी कि लाइव बर्थ के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ 1 लाख लाइव बर्थ। Maternal mortality rate is a measure used to assess the risk of maternal death related to pregnancy and child। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 लाख। ये क्वेश्चन कई बार आप लोगों के एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ है। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज और इन्फर्मिटी। ये डेफिनेशन गिवन बाय, जो हेल्थ की जो डेफिनेशन है वो किसके द्वारा दी गई है? हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज और इन्फर्मिटी। डेफिनेशन गिवन बाय ऑप्शन ए यूनिसेफ, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी WHO एंड ऑप्शन डी रेड क्रॉस। जो हेल्थ की डेफिनेशन है वो किसके द्वारा दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, WHO के द्वारा इसकी डेफिनेशन दी गई है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हेल्थ की डेफिनेशन दी गई है। इन द फॉलोइंग विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा कम्युनिकेशन का एलिमेंट नहीं है? निम्न में से कौन सा एलिमेंट कम्युनिकेशन का एलिमेंट नहीं है? ऑप्शन ए सेंडर, ऑप्शन बी मैसेज, ऑप्शन सी ऑटोनॉमी, ऑप्शन डी फीडबैक। निम्नलिखित में से कौन सा कम्युनिकेशन का एलिमेंट नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी इनमें से कम्युनिकेशन का एलिमेंट नहीं है। इसके कम्युनिकेशन के 4 एलिमेंट होते हैं। पहला एलिमेंट सेंडर, दूसरा मैसेज, तीसरा रिसीवर, चौथा फीडबैक। तो ये जो 4 एलिमेंट में ये जो ऑटोनॉमी है वो एलिमेंट शामिल नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑटोनॉमी होगा। आपको कम्युनिकेशन के चारों एलिमेंट का नाम याद होना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा जो दिखाए जा रहे क्वेश्चंस हैं वो पसंद आ रहे होंगे और आप लोग उस इन क्वेश्चंस से तैयारी, अपनी जो एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे होंगे। और थैंक्स फॉर वाचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MCQ सीरीज के इस भाग में। यह MCQ सीरीज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस से तैयार की गई है जो कि भर्ती परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। आशा करते हैं आपको ये MCQ सीरीज पसंद आ रही होगी, जिससे कि आप लोगों की तैयारी में आपको मदद मिल रही होगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको उपलब्ध कराए, जिससे कि आपकी भर्ती परीक्षा में आपका चयन हो सके। ये भर्ती परीक्षा आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होगी, इसलिए हम चाहते हैं कि आपको इन प्रश्नों का मदद मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक बनिए रहिए। व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ कोविड-19 डिजीज? कोविड-19 बीमारी का कारक यानी कारक है। What is the causative agent of COVID-19 disease? Option A बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ। कोविड-19 बीमारी का कारक है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वायरस। द न्यू डिकेड ऑफ द 21st century started with the deadly coronavirus 2019 COVID-19 pandemic caused by a novel coronavirus SARS-CoV-2 syndrome coronavirus 2। तो इस जो कोविड 19 नामक की जो बीमारी का जो कारण था वो वायरस था। कौन सा वायरस था?
सार्स CoV-2 यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 इस बीमारी का मुख्य कारण था। तो इस क्वेश्चंस में हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चंस को सम्मिलित कर लिया था, तो आपको कम प्रश्नों में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का जवाब देने की जानकारी मिल सके। The duration of treatment for multi-drug resistant tuberculosis is the duration of treatment for MDR tuberculosis is multi-drug resistant tuberculosis के इलाज की अवधि होती है। क्या अवधि होती है? कमेंट करो। ऑप्शन ए एटलीस्ट अ वीक, ऑप्शन बी एटलीस्ट 2 weeks, ऑप्शन सी एटलीस्ट 3 weeks, ऑप्शन डी एटलीस्ट 4 weeks। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के इलाज की अवधि होती है मिनिमम कितनी अवधि होनी चाहिए? इसका करेक्ट आंसर होगा एटलीस्ट 4 weeks। एटलीस्ट मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के इलाज एटलीस्ट 4 weeks तक तो देना चाहिए। इंट्राडर्मल इंजेक्शन इज गिवन एट, इंट्राडर्मल इंजेक्शन दिया जाता है। ऑप्शन ए 5 डिग्री एंगल, ऑप्शन बी 30 डिग्री एंगल, ऑप्शन सी 45 डिग्री एंगल, ऑप्शन डी 90 डिग्री एंगल। इंट्राडर्मल इंजेक्शन इज गिवन एट, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 5 डिग्री एंगल। Intradermal injections involve inserting a short needle into the dermal layer of the skin, which is just below the epidermis. ये इसमें अगर ऑप्शन 10 से 15 डिग्री एंगल का भी अगर होता है तो भी करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन 5 से 15 डिग्री का एंगल भी माना जाता है, लेकिन यहाँ पर हमारे को ये ऑप्शन दे रखा था कि 5 डिग्री एंगल का, तो इसलिए हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 5 डिग्री एंगल का। यहाँ पर मैंने पिक्चर भी दे रखी थी, एक इमेज लगा रखी है आप लोगों के लिए। उस इमेज में 10 से 15 डिग्री एंगल पर इंट्राडर्मल इंजेक्शन का शो कर रखा है। सो आप लोगों के लिए ये जानने के लिए इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस कैन बी इंजेक्टेड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग मसल्स एक्सेप्ट, निम्नलिखित मांसपेशियों मसल्स को छोड़कर सभी में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे मैंने जानबूझकर डाले गए हैं जिनमें नेगेटिव तरीके से भी सोचना पड़ेगा, यानी कि उसमें से छोड़कर, इनमें से छोड़कर कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो कई सारे क्वेश्चंस इस तरीके से बनते हैं एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में, तो उसका आप लोगों को आंसर देते वक्त आपको ध्यान रखना जरूरी है, नहीं तो उस क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है। तो इसलिए आपको क्वेश्चन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर दोबारा से इस क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है। निम्नलिखित मांसपेशियों को छोड़कर सभी में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कैन बी इंजेक्टेड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग मसल्स एक्सेप्ट। सो इसका ऑप्शन ए ट्राइसेप्स, ऑप्शन बी डेल्टोइड, ऑप्शन सी वेस्टस लेटरलिस, ऑप्शन डी ग्लूटियल। निम्न में से मांसपेशियों को छोड़कर सभी में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं। तो कमेंट कीजिए क्या आंसर होगा इसका। इसका सही आंसर होगा ट्राइसेप्स। निम्नलिखित मांसपेशियों को छोड़कर यानी ट्राइसेप्स को छोड़कर आप सभी मसल्स में, यानी कि जो दी गई मसल्स हैं उनमें इंजेक्शन लगा सकते हैं। ड्यूरिंग टेकिंग BP at upper arm, chest piece of stethoscope will put on which artery? BP लेते समय स्टेथोस्कोप का हेड पीस किस धमनी, किस आर्टरी पर लगाया जाएगा? BP लेते समय स्टेथोस्कोप को कहाँ रखा जाता है या फिर कहाँ लगाया जाता है? ऑप्शन ए एक्सिलरी, ऑप्शन बी ब्रेकियल, ऑप्शन सी रेडियल, ऑप्शन डी अल्नार। BP लेते समय स्टेथोस्कोप को किस धमनी पर यानी किस आर्टरी पर लगाया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रेकियल आर्टरी पर लगाया जाता है। ड्यूरिंग टेकिंग ब्लड प्रेशर एट द अपर आर्म, द चेस्ट पीस डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप इज प्लेस्ड ओवर द ब्रेकियल आर्टरी। तो इसका करेक्ट आंसर ब्रेकियल आर्टरी पर रखा जाता है। If the pulse rate is more than
100 per minute, the condition is called. यदि पल्स रेट 100 प्रति मिनट से अधिक हो तो यह स्थिति कहलाती है टेकिकार्डिया, ऑप्शन बी ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन सी हाइपरपनिया, ऑप्शन डी ब्रेडेपनिया। यदि पल्स रेट प्रति मिनट 100 प्रति मिनट से अधिक हो तो यह स्थिति कहलाएगी। इसका करेक्ट आंसर होगा टेकिकार्डिया। यदि 100 प्रति मिनट से पल्स अधिक है तो उसे हम टेकिकार्डिया कहते हैं। फीवर विद रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया इज सीन इन। फीवर विद रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया इज सीन इन ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी टाइफॉइड, ऑप्शन सी फाइलेरिया, ऑप्शन डी डिप्टीरिया। इसका करेक्ट आंसर होगा टाइफॉइड। फीवर विद रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया इज सीन इन टाइफॉइड। फीवर विद रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया इज ए क्लासिक क्लिनिकल फाइंडिंग इन टाइफॉइड फीवर। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा टाइफॉइड फीवर। डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय बाइट ऑफ विच मॉस्किटो। डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है? ऑप्शन ए एडिस, ऑप्शन बी एनाफिलिस, ऑप्शन सी क्विलेक्स, ऑप्शन डी मेंसोनिया। डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ विच मॉस्किटो। डेंगू फीवर किस मच्छर के काटने से होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा एडिस। एडिस मस्कीटो के काटने से डेंगू फीवर होता है। डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ द एडिस मॉस्किटो। द प्राइमरी मॉस्किटो स्पीसीज responsible for transmitting the dengue virus is Aedes aegypti. So इसका करेक्ट आंसर एडिस मॉस्किटो होगा। परफॉर्म्ड एब्डोमिनल एग्जामिनेशन इज। पेट की यानी एब्डोमेन की जांच की जाती है। ऑप्शन ए इंस्पेक्शन, ऑप्शन बी ऑस्कल्टेशन, ऑप्शन सी परकशन पाल्पेशन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। पेट की यानी एब्डोमेन की जांच की जाती है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। यानी कि जब एब्डोमेन का जांच की जाती है तो इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, परकशन, पाल्पेशन सभी मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है तो इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। अ पर्सन हु इज अनकॉन्शियस नॉट ब्रीदिंग एज अ वीक पल्स नीड्स। एक व्यक्ति बेहोश व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा है जैसा कि वीक पल्स के लिए जरूरी है, यानी कि उसकी पल्स वीक है तो क्या करना होगा, यहाँ पर उसके लिए क्या करना जरूरी होगा? ऑप्शन ए सीपीआर, ऑप्शन बी हियर मिल्क मैन्यूअर, ऑप्शन सी रिसेस ब्रीदिंग, ऑप्शन डी बैक लॉस एंड चेस्ट थ्रस्ट। क्या करना होगा उसके लिए? बेहोश व्यक्ति जो सांस नहीं ले पा रहा है जैसा कि वीक पल्स के लिए जरूरी है, यह एक फर्स्ट एड यानी कि उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बेहोश व्यक्ति के लिए जो सांस नहीं ले पा रहा है, उसकी पल्स भी वीक चल रही है तो उसके करेक्ट आंसर उसके लिए क्या होगा, क्या देना होगा? उसके लिए सीपीआर देना होगा। इफ अ पर्सन इज अनकॉन्शियस नॉट ब्रीदिंग एंड हैज अ वीक पल्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन इज टू परफॉर्म सीपीआर। उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पर जो आपको एक्शन लेना होगा सीपीआर का एक्शन लेना होगा इमीडिएटली। सीपीआर इज अ लाइफ सेविंग टेक्निक। सो थैंक यू आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बने रहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू सीरीज के इस भाग में। आशा करता हूं आप लोगों को ये एमसीक्यू सीरीज पसंद आ रही होगी। आप लोगों को दिए जा रहे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप लोग पढ़ रहे होंगे, लिख रहे होंगे या फिर आपकी तैयारियों में ये क्वेश्चंस आपके सहयोग कर रहे होंगे। ये एमसीक्यू सीरीज एएनएम, जीएनएम नर्सिंग भर्ती परीक्षा के लिए विशेष रूप से तैयार की गई है। इसमें जो क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं वो सारे क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस से तैयार किए गए हैं। आशा करते हैं आप लोगों को इन क्वेश्चन से मदद मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिए। ओरल पोलियो वैक्सीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। ओरल पोलियो वैक्सीन किससे तैयार की जाती है? ऑप्शन ए लाइव एटेन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन बी किल्ड ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन सी टॉक्सॉइड, ऑप्शन डी एरोबिक बैक्टीरिया।
ओरल पोलियो वैक्सीन किससे तैयार की जाती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाइव एटेन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म। ओरल पोलियो वैक्सीन, दिस वैक्सीन कंटेन्स वीकेंड एटेन्यूएटेड लाइव पोलियो वायरस स्ट्रेन्स। तो ये लाइव एटेन्यूएटेड यानी लाइव पोलियो वायरस स्ट्रेन से तैयार की जाती है। और जो IPV है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, वो दिस वैक्सीन कंटेन्स इनएक्टिवेटेड किल्ड पोलियो वायरस, यानी कि वो किल्ड ऑर्गेनिज्म से तैयार की जाती है। तो यहाँ पर जो दोनों क्वेश्चंस के जवाब दिए हैं, यहाँ पर दोनों में डिफरेंस मैंने आप लोगों को बता दिया है। यानी कि जो ओरल पोलियो वैक्सीन है वो आपको लाइव एटेन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म से तैयार की जाती है। आप लोगों के एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं जो जिनमें 4 MCQs होते हैं, 4 आपके विकल्प होते हैं। इन चारों विकल्प को चॉइस में से एक चॉइस आपको चूज करनी होती है। वो जैसे कि यहाँ पर पहले लाइव एटेन्यूएटेड जो ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन बी था किल्ड ऑर्गेनिजम्स, ऑप्शन सी था टॉक्सोइड एंड ऑप्शन डी था एरोबिक बैक्टीरिया। तो दोनों में से कंफ्यूजन आपको क्लियर था, तो यहाँ पर इसको क्लियर करने के लिए मैंने आपको आपके सामने दोनों ही ऑप्शन रखे हैं। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। वुंड ड्रेसिंग इज डन बाय यूजिंग, घाव की ड्रेसिंग किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए, सेप्टिक टेक्निक, ऑप्शन बी, मेडिकल एसेप्सिस, ऑप्शन सी, सर्जिकल एसेप्सिस, ऑप्शन डी, मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस। घाव की ड्रेसिंग किसके द्वारा की जाती है? इसका करेक्ट आंसर होगा घाव की ड्रेसिंग सर्जिकल एसेप्सिस टेक्निक के द्वारा की जाती है। इंसुलिन इज इंजेक्टेड इनटू, इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। ऑप्शन ए, इंट्राडर्मल, ऑप्शन बी, सबक्यूटेनियस, ऑप्शन सी, इंट्राथीकल, ऑप्शन डी, इंट्रामस्कुलर। इंसुलिन इज इंजेक्टेड इनटू, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंट्राडर्मल। मैंने लास्ट के क्वेश्चन सीरीज में भी आप लोगों को बताया था कि इंट्राडर्मल इंजेक्शन कौन से डिग्री के एंगल पर लगाया जाता है, और यहाँ पर मैंने आपके इस इमेज के द्वारा भी आपको दिखाया जा रहा है। यानी कि इंट्राडर्मल इंजेक्शन 10 से 15 डिग्री के कोण पर लगाया जाता है। सो यहाँ पर आपको इमेज के द्वारा भी दिख रहा होगा। बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग द मेडिसिन टू अ पेशेंट, अ नर्स चेक्स द प्रिस्क्रिप्शन। बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग द मेडिसिन टू अ पेशेंट, अ नर्स चेक्स द प्रिस्क्रिप्शन। किसी मरीज को मेडिसिन देने से पहले नर्स प्रिस्क्रिप्शन की जांच करती है। कितनी बार जांच करती है? ऑप्शन ए, 2 टाइम्स, ऑप्शन बी, 1 टाइम, ऑप्शन सी, 3 टाइम्स, ऑप्शन डी, 4 टाइम्स। किसी मरीज को दवा देने से पहले नर्स प्रिस्क्रिप्शन स्लिप की जांच करती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 टाइम्स। यानी कि जो 3 बार जांच करती है वो है, पहला चेक करती है कि राइट पेशेंट, यानी पेशेंट राइट, उसका नाम, पता, यानी पिता का नाम, इन चीज़ों को वो क्लियर करती है। दूसरा है राइट मेडिकेशन, मेडिकेशन जो दी जा रही है क्या वही मेडिसिन है, तो उसके लिए वो जो प्रिस्क्रिप्शन स्लिप है उसको दोबारा से चेक करती है। एंड जो तीसरी चीज चेक करती है वो राइट डोजेज एंड राइट रूट, जो डोज दी जा रही है और रूट दिया जा रहा है उसको चेक करती है। तो बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन मेडिसिन वो जो देती है उसकी जो प्रिस्क्रिप्शन स्लिप है उसको जो नर्स है वो 3 बार चेक करती है। आई पैडिंग इज अप्लाइड ऑन अनकॉन्शियस पेशेंट टू प्रिवेंट, आंख की पैडिंग लगाई जाती है बेहोश रोगी पर रोकथाम के लिए। जो आंख पर पैडिंग लगाई जाती है बेहोश रोगी पर किस चीज के लिए, किसकी रोकथाम के लिए लगाई जाती है? ऑप्शन ए, ड्राइनेस ऑफ आई, ऑप्शन बी, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, ऑप्शन सी, कोरोनियल अल्सर, ऑप्शन डी, आई मूवमेंट। आंख की पैडिंग लगाई जाती है बेहोश रोगी पर रोकथाम के लिए। इसका करेक्ट आंसर होगा कॉर्नियल अल्सर। कॉर्नियल अल्सर को रोकथाम के लिए आंख पर पैडिंग लगाई जाती है अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए। प्लेटलेट काउंट डिक्रीज इन, प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। ऑप्शन ए, मलेरिया, ऑप्शन बी, फाइलेरिया, ऑप्शन सी, डेंगू, ऑप्शन डी, टाइफाइड। प्लेटलेट काउंट कम हो जाती है, इसका करेक्ट आंसर होगा
डेंगू फीवर में प्लेटलेट का काउंट कम हो जाता है। प्लेटलेट count can decrease significantly in dengue fever. Dengue fever is a viral infection transmitted by mosquito. One of the hallmark feature of dengue fever is thrombocytopenia, which means a decrease in the number of platelets in the blood. A gland which can be classified as an exocrine gland is a ग्रंथि जिसे बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी थाइमस, ऑप्शन सी पेनक्रियाज, ऑप्शन डी पिट्यूटरी। एक ग्रंथि जिसे बहिस्रावी यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में क्लासिफाई किया जा सकता है, इसका करेक्ट आंसर होगा पेनक्रियाज। द पेनक्रियाज इज an example of gland that can be classified as an exocrine gland. It has both endocrine and exocrine functions. So पेनक्रियाज को बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में क्लासिफाई किया जा सकता है। हीट रेगुलेटिंग सेंटर इज लोकेटेड इन। हीट रेगुलेटेड सेंटर स्थित हैं। ऑप्शन ए थैलेमस, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी मेडुला ऑब्लिंगेटा, ऑप्शन डी सेरेब्रम। हीट रेगुलेटिंग सेंटर स्थित है, इसका करेक्ट आंसर होगा हाइपोथैलेमस। हीट रेगुलेटिंग सेंटर कहाँ स्थित है? हाइपोथैलेमस में हीट रेगुलेटिंग सेंटर स्थित है। द हीट रेगुलेटिंग सेंटर इन द ह्यूमन बॉडी इज लोकेटेड इन द hypothalamus. The hypothalamus is a small region in the brain, specifically located below the thalamus and above the pituitary gland. It plays a vital role in maintaining the body internal balance known as homeostasis. So heat regulating center कहाँ स्थित है? हाइपोथैलेमस में स्थित है, जो कि इंटरनल बैलेंस यानी कि जो अंतर्गत बैलेंस है उस बनाए रखता है, जिसे हम होमोस्टेसिस के नाम से जानते हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सेप्ट। संचार प्रक्रिया, कम्युनिकेशन प्रक्रिया प्रभावित होती है सिवाय इसके। जो कम्युनिकेशन प्रक्रिया प्रभावित होती है इसके अलावा ऑप्शन ए मोटिवेशन, ऑप्शन बी एटीट्यूड, ऑप्शन सी एंगर, ऑप्शन डी कल्चर डिफरेंस। जो कम्युनिकेशन प्रक्रिया है वो प्रभावित होती है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट करो। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इसको सब्सक्राइब कर लिए, जिससे कि उन लोगों को जो भी क्वेश्चंस जो भी आ रहे हैं उनका सही से जवाब देने में आसानी हो सके और उनको मदद हो सके, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए ऐसे क्वेश्चंस लाने के लिए जो कि उनकी तैयारी में मदद कर सकेंगे। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सेप्ट। ऑप्शन ए मोटिवेशन, ऑप्शन बी एटीट्यूड, ऑप्शन सी एंगर, ऑप्शन डी कल्चर डिफरेंस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मोटिवेशन। संचार प्रक्रिया प्रभावित होती है सिवाय मोटिवेशन के। द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज। द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज। सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर के बीच का अंतर है। ऑप्शन ए ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी पल्स प्रेशर, ऑप्शन सी अपाइकल प्रेशर, ऑप्शन डी लेटरल प्रेशर। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के मध्य का जो प्रेशर है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पल्स प्रेशर। उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पल्स प्रेशर होगा। पल्स प्रेशर इज कैलकुलेटेड बाय सबट्रैक्टिंग द डायस्टोलिक प्रेशर फ्रॉम द सिस्टोलिक प्रेशर। तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला है, पल्स प्रेशर इक्वल टू सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर। अगर किसी का पल्स प्रेशर आपको निकालना है तो उसका जैसे कि 120/80 mm ऑफ Hg उसका ब्लड प्रेशर है, तो उसका जो पल्स प्रेशर निकालने का जो फॉर्मूला यानी कि जो 120 माइनस 80 यानी कि इक्वल टू कितना होगा उसका पल्स प्रेशर, वो उसका करेक्ट पल्स प्रेशर होगा। तो कमेंट कीजिएगा कितना उसका पल्स प्रेशर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू सीरीज के इस भाग में। यह एमसीक्यू सीरीज एएनएम, जीएनएम नर्सिंग भर्ती परीक्षा के लिए विशेष रूप से तैयार की गई है।
इस MCQ सीरीज में राजस्थान नर्स सुविधा भर्ती परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रखे गए हैं। आशा करते हैं आप लोगों के लिए ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी और जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आप लोगों की मदद कर रही होंगी। चलिए शुरू करते हैं। Which of the following condition is unrelated to postpartum hemorrhage? Which of the following condition is unrelated to postpartum hemorrhage? निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति प्रसवोत्तर रक्तस्राव से असंबंधित है, यानी कि कौन सी स्थिति ऐसी है जो PPS से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए डिलीवरी ऑफ ट्विंस और हाइड्रोअमोनियस रिटेन प्लेसेंटा, ऑप्शन सी टॉक्सेमिया ऑफ प्रेगनेंसी, ऑप्शन डी ओवर डिस्टेंडेड ब्लैडर विद हाई ब्लड प्रेशर। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति प्रसवोत्तर रक्तस्राव से संबंधित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी टॉक्सेमिया ऑफ प्रेगनेंसी। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति प्रसवोत्तर रक्तस्राव से असंबंधित है, यानी संबंधित नहीं है? टॉक्सेमिया ऑफ प्रेगनेंसी इससे संबंधित नहीं है। इससे संबंधित कैसे नहीं है? टॉक्सेमिया ऑफ प्रेगनेंसी आल्सो नोन एज प्री एक्लेम्सिया इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ब्लड प्रेशर एंड डैमेज टू ऑर्गन ऑफन involving the liver and kidneys, while preeclampsia can cause complications during pregnancy, such as placenta abruption, which can lead to bleeding. It is not directly related to postpartum hemorrhage. So यहाँ क्वेश्चन हमारा क्या था कि कौन सी स्थिति PPS से संबंधित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा टॉक्सेमिया ऑफ प्रेगनेंसी PPS से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What part of the body require special hygiene when a patient has a nasogastric feeding? जब किसी मरीज को नासोगैस्ट्रिक फीडिंग ट्यूब लगी हो तो शरीर के किस हिस्से को विशेष हाइजीन की आवश्यकता होती है? जब किसी मरीज को नासोगैस्ट्रिक फीडिंग ट्यूब लगी हो तो शरीर के किस हिस्से को विशेष स्वच्छता की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए रेक्टम, ऑप्शन बी एब्डोमेन, ऑप्शन सी ओरल कैविटी, ऑप्शन डी पेरिनियल एरिया। जब किसी मरीज को नासोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग लगी हो तो शरीर के किस हिस्से को विशेष स्वच्छता की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए रेक्टम, ऑप्शन बी एब्डोमेन, ऑप्शन सी ओरल कैविटी एंड ऑप्शन डी पेरिनियल एरिया। तो किस हिस्से को विशेष स्वच्छता की आवश्यकता होती है? और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ओरल कैविटी। व्हेन अ पेशेंट हैज अ नासोगैस्ट्रिक फीडिंग ट्यूब, स्पेशल हाइजीन रिक्वायर्ड फॉर द ओरल कैविटी। दिस इन्वॉल्व्स मेंटेनिंग क्लीननेस एंड हाइजीन इन द माउथ इंक्लूडिंग रेगुलर mouth care to prevent infection, oral discomfort and other potential complications related to the presence of nasogastric tube. So जब किसी मरीज को नासोगैस्ट्रिक फीडिंग ट्यूब लगी हो तो शरीर के किस हिस्से को विशेष स्वच्छता की आवश्यकता होती है? शरीर के यानी कि ओरल कैविटी को विशेष स्वच्छता हाइजीन की आवश्यकता होती है। The substance that is oxidized in the body during respiration is, वो पदार्थ जो श्वसन के दौरान शरीर में ऑक्सीकृत होता है। The substance that is oxidized in the body during respiration is option A carbohydrate, option B protein, option C mineral, option D ग्लूकोज। वो पदार्थ जो श्वसन के दौरान शरीर में ऑक्सीकृत होता है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी मिनरल, ऑप्शन डी
ग्लूकोज कौन सा पदार्थ है जो श्वसन के दौरान शरीर में ऑक्सीकृत होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्लूकोज। सेलुलर रेस्पिरेशन is the process by which cells in the body produce energy in the form of ATP by breaking down organic molecules with the aid of oxygen. The primary substance that is oxidized during respiration is glucose, which is type of carbohydrate. So इसमें प्राइमरी जो है वो ग्लूकोज है, और अगर ग्लूकोज नहीं होता ऐसी स्थिति में करेक्ट आंसर कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर प्राइमरी जो ऑप्शन मिला था हमें ग्लूकोज ऑप्शन मिला, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ग्लूकोज होगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द साइनोवियल फ्लूइड इन द जॉइंट? जोड़ों में साइनोवियल फ्लूइड का क्या कार्य है? ऑप्शन ए, मिनिमाइज वेलोसिटी ऑफ मूवमेंट्स। ऑप्शन बी, रिड्यूस फ्रिक्शन इन द जॉइंट्स। ऑप्शन सी, इम्प्रूव इफिशियंसी। ऑप्शन डी, इंक्रीज वर्क आउटपुट। जोड़ों यानी जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड का क्या कार्य है? ऑप्शन ए, मिनिमाइज वेलोसिटी ऑफ मूवमेंट्स, रिड्यूस फ्रिक्शन इन द जॉइंट्स, इम्प्रूव एफिशिएंसी, और ऑप्शन डी, इंक्रीज वर्क आउटपुट। क्या इसका जोड़ों में साइनोवियल फ्लूइड का क्या कार्य होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रिड्यूस फ्रिक्शन इन द जॉइंट। जोड़ों में रिड्यूस फ्रिक्शन करने का कार्य है साइनोवियल फ्लूइड का। द साइनोवियल फ्लूइड इन द जॉइंट सर्व्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द बोन इन द जॉइंट। सो इसका साइनोवियल फ्लूइड का मुख्य कार्य है रिड्यूस फ्रिक्शन इन द जॉइंट। व्हाट पार्ट ऑफ द ब्रेन exerts reflex control of respiration? मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन का प्रतिवर्ती नियंत्रण करता है? रिफ्लेक्स कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन को मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? ऑप्शन ए, मेडुला ऑब्लिंगेटा। ऑप्शन बी, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस। ऑप्शन डी, सेरेब्रम। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन का प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है? ऑप्शन ए, मेडुला ऑब्लिंगेटा। ऑप्शन बी, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस। ऑप्शन डी, सेरेब्रम। तो कौन सा हिस्सा कंट्रोल यानी कि कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेडुला ऑब्लिंगेटा। ये क्वेश्चन मैंने रिपीटेड एक दो बार पहले भी पूछा हुआ है। अलग अलग लैंग्वेज के आधार पर अलग अलग तरीके से प्रश्न को बनाकर पूछा हुआ है, तो ध्यान रखें क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग अलग तरीका हो सकता है। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस के पैटर्न्स वही होते हैं, सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है या फिर उनका थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया जाता है। तो क्वेश्चंस को करने का तरीका, पैटर्न आपको ध्यान में रखना है। The medulla oblongata is the part of the brainstem located in the lower part of the brain just above the spinal cord। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेडुला oblongata। The nurse take the patient's blood pressure and record SBP oblique DBP as 180 by 100. What should the nurse do? The nurse take the patient blood pressure and records SBP oblique DBP systolic blood pressure oblique diastolic blood pressure as 180 oblique 100. What should the nurse do first? नर्स मरीज का ब्लड प्रेशर नापती है और SBP DBP को 180 oblique 100 के रूप में दर्ज करती है, तो नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, रिटेक द ब्लड प्रेशर। ऑप्शन बी, टेक द अदर वाइटल साइन। ऑप्शन सी, नोटिफाई द नर्स इन चार्ज। ऑप्शन डी, नोटिफाई द फिजिशियन। नर्स मरीज का ब्लड प्रेशर नापती है और उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 बाई 100 के रूप में दर्ज करती है, तो नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन ए, रिटेक द ब्लड प्रेशर। ऑप्शन बी,
take the vital signs. Option C, notify the nurse in charge, and option D, notify the physician. क्या करना चाहिए नर्स को, सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, रिटेक द ब्लड प्रेशर। नर्स को दोबारा से ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए। Before taking further action or notifying anyone, the nurse should ensure the accuracy of the blood pressure measurement. If the second reading remains elevated, appropriate actions such as notifying the nurse in charge or physician can be taken based on the facility protocols and the patient condition. So nurse को सबसे पहले क्या इंश्योर करना चाहिए कि उसको दोबारा से ब्लड प्रेशर चेक करना है बिफोर द इन्फॉर्म टू एवरीवन। पहले जब सूचना करने से पहले उसको इंश्योर करना चाहिए कि एक्यूरेसी ऑफ ब्लड प्रेशर कैसा है। सोरेसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, सोरेसिस की विशेषता है ऑप्शन ए, शाइनी स्काइली लीजन इन द स्किन, ऑप्शन बी, प्रोराइटस, ऑप्शन सी, मल्टीपल पैचेस, ऑप्शन डी, इरिथोमेटियस मैक्यूल। सोरेसिस की क्या विशेषता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, शाइनी स्काइली लीजन इन द स्किन। सोरेसिस इज ए chronic skin condition that causes the rapid build-up of skin cells. The affected skin may have shiny, silvery, or white scales, and the lesions are often red and inflamed. So, psoriasis की विशेषता है shiny, scaly lesion in the skin. Which position is contraindicated for a patient who has dyspnea? डिस्पनिया वाले रोगी के लिए कौन सी स्थिति वर्जित है? डिस्पनिया वाले पेशेंट के लिए कौन सी स्थिति वर्जित है, यानी कि नहीं करनी है? ऑप्शन ए, सुपाइन, ऑप्शन बी, कॉन्ट्यूर, ऑप्शन सी, फाउलर्स, ऑप्शन डी, ऑर्थोपेनिक। डिस्पनिया वाले पेशेंट के लिए कौन सी स्थिति वर्जित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुपाइन। सुपाइन पोजिशन वेयर द पेशेंट लाइज फ्लैट ऑन देयर बैक कैन बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर अ पेशेंट हु हैज डिस्पनिया। डिस्पनिया मींस डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो उसके लिए कौन सी स्थिति कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगी? सुपाइन पोजीशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगी जो पेशेंट को डिस्पनिया है। डिस्पनिया क्या होता है? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, यानी उसको सांस लेने में कठिनाई हो रही है। What does Braxton Hicks sign mean? Braxton Hicks जो साइन है उसका मतलब क्या है? Braxton Hicks साइन का क्या मतलब है? ऑप्शन ए, इंटरमिटेंट पेनलेस यूटेरियन कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन बी, एक्टिव फीटल मूवमेंट, ऑप्शन सी, एनलार्ज यूट्रस, ऑप्शन डी, क्यूकनिंग। Braxton Hicks साइन का क्या मतलब है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, इंटरमिटेंट पेनलेस uterine contraction. Braxton Hicks contractions are intermittent, painless, and usually mild contractions of the uterus that occur during pregnancy. These contractions are also known as practice contractions as they help prepare the uterus for labor. They are named after the British physician John Braxton Hicks, who first described them in 1872. So ब्रैक्सटन हिक्स साइन का मतलब है इंटरमिटेंट पेनलेस यूटेरियन कॉन्ट्रैक्शन। व्हाट इज द कॉमन अंडरलाइनिंग कॉज फॉर लो बर्थ वेट? जन्म के समय कम वजन का सामान्य कारण क्या है? ऑप्शन ए, एनीमिया इन मदर, ऑप्शन बी, शॉर्ट स्ट्रक्चर ऑफ मदर, ऑप्शन सी, कंजेनाइटल टॉक्सिसिटी, ऑप्शन डी, डायबिटीज इन प्रेगनेंसी। जन्म के समय कम वजन का सामान्य कारण क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एनीमिया इन मदर। जन्म के समय कम वजन का सामान्य कारण ऑप्शन ए, एनीमिया इन मदर। लो बर्थ वेट LBW is defined as a birth weight of less than 2500 grams. Several factors can contribute to low birth weight, but one common underlying cause is maternal एनीमिया। सो जन्म के समय कम वजन का सामान्य कारण है एनीमिया इन मदर।
Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, comment and share. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू सीरीज के इस भाग में। यह एमसीक्यू सीरीज विशेष तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से तैयार की गई है, जिससे कि आप लोगों की भर्ती परीक्षा में आप लोगों को मदद मिल सके, आपकी तैयारी में मदद मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा उन क्वेश्चंस को तैयार किया गया है जो पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं और नए एग्जाम में आने की संभावनाएं बनी रहती है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे कि आपको तैयारी में ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके। Pulse sensory perception with no bias in reality is known as pulse sensory perception with no basis in reality is known as वास्तविकता में बिना किसी भी आधार वाली झूठी संवेदनाओं धारणाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एलुसिनेशन, ऑप्शन बी डिल्यूशन, ऑप्शन सी इल्यूजन, ऑप्शन डी थॉट इंसर्शन। झूठी वास्तविकता में बिना किसी आधार वाली झूठी संवेदी धारणाओं को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर इज हेलुसिनेशन। इसका करेक्ट आंसर होगा हेलुसिनेशन। हाउ मेनी डेज आफ्टर कंसेप्शन डज प्लेसेंटल सर्कुलेशन बिगिन? गर्भाधान के कितनों दिनों के बाद अपरा परिसंचरण प्रारंभ हो जाता है? अपरा मीन्स प्लेसेंटल सर्कुलेशन प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन ए 30 डेज ऑफ गेस्टेशन, ऑप्शन बी 15 डेज ऑफ जेस्टेशन, ऑप्शन सी 21 डेज ऑफ जेस्टेशन, ऑप्शन डी 40 डेज ऑफ जेस्टेशन। हाउ मेनी डेज आफ्टर कॉन्सेप्शन डज प्लेसेंटल सर्कुलेशन बिगिन? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 21 to 22 डेज ऑफ जेस्टेशन। 21 से 22 डेज ऑफ गेस्टेशन में अपरा परिसंचरण यानी कि प्लेसेंटल सर्कुलेशन प्रारंभ हो जाता है। मॉन्टेक्स टेस्ट इज यूज्ड टू टेस्ट। मॉन्टेक्स टेस्ट किसकी जांच के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी डिप्थीरिया, ऑप्शन सी लेप्रोसी, ऑप्शन डी निमोनिया। मॉन्टेक्स टेस्ट किसकी जांच के लिए प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ट्यूबरकुलोसिस। द मॉन्टेक्स टेस्ट आल्सो नोन एज द ट्यूबरकुलोन स्किन टेस्ट is used to test for tuberculosis TB infection. It helps to identify individuals who have been exposed to the bacteria that cause tuberculosis. What type of vaccine is the BCG vaccine? What type of vaccine is the BCG vaccine? BCG टीका किस प्रकार का टीका है? किल्ड वैक्सीन, लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, टॉक्साइड। बीसीजी टीका किस प्रकार का टीका है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन। बीसीजी का टीका लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन है। द बीसीजी वैक्सीन इज अ टाइप ऑफ लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन। बीसीजी स्टैंड्स फॉर बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन, named after scientists who developed the vaccine Albert Calmette and Calmette-Guerin. It is primarily used to protect against tuberculosis. BCG जो टीका है वो लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन है और ये प्रोटेस्ट अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी के अगेंस्ट में प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चंस के जवाब बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन बीसीजी का टीका किस प्रकार का टीका है? ये लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन है। दूसरा है किस बीमारी से प्रोटेक्ट करता है? तो ये ट्यूबरकुलोसिस से प्रोटेक्ट करता है। किस बीमारी से प्रोटेक्ट करता है? ट्यूबरकुलोसिस से प्रोटेक्ट करता है। पोलियोमाइलिटिस है
ऑप्शन ए डिसऑर्डर ऑफ मसल्स, ऑप्शन बी डिसऑर्डर ऑफ जीआईटी, ऑप्शन सी डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑप्शन डी डिसऑर्डर ऑफ बोन्स। पोलियोमाइलिटिस किसका डिसऑर्डर है? करेक्ट आंसर इज डिसऑर्डर ऑफ मसल्स। जो पोलियोमाइलिटिस है वो किसका डिसऑर्डर है? डिसऑर्डर ऑफ मसल्स, मसल्स का डिसऑर्डर है। इसका करेक्ट आंसर होगा डिसऑर्डर ऑफ मसल्स। हाउ इज हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड? हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन किस प्रकार होता है? हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन किस प्रकार फैलता है या फिर होता है? ऑप्शन ए ओरल रूट, ऑप्शन बी नेजल रूट, ऑप्शन सी पेरेंटल रूट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन किस प्रकार होता है? हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन किस प्रकार होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा पेरेंटल रूट। इसका करेक्ट आंसर है पेरेंटल रूट। Hepatitis B is primarily transmitted through the parental route, which means the virus enters body through direct contact with the infected blood or bodily fluids। यानी कि जो इन्फेक्शन है वो किसके थ्रू एंटर होता है? थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट की वजह से होता है विद इन्फेक्टेड ब्लड और बॉडीली फ्लूइड्स। इन्फेक्टेड ब्लड और बॉडीली फ्लूइड्स के है। तो इसके जो कारण है वो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, शेयरिंग ऑफ नीडल्स, मदर टू चाइल्ड, मेडिकल प्रोसीजर्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। दीज आर द पेरेंटल रूट्स, यानी दीज आर द कॉजेज ऑफ हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड। सो हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन पेरेंटल रूट से फैलता है, जिसमें से मेजर रीजन है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, शेयरिंग ऑफ नीडल्स है, मदर टू चाइल्ड, मेडिकल प्रोसीजर्स और ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये इसके मेजर कारण हैं। व्हेन वाज पीपीआई स्टार्टेड? पीपीआई कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए ईयर 1990, ऑप्शन बी ईयर 1985, ऑप्शन सी ईयर 1975, ऑप्शन डी ईयर 1995। When was PPI started? PPI स्टार्ट कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ईयर 1995। द पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन इंडिया in 1995 with the objective of achieving 100% coverage of oral polio vaccine and eradicating the threat of polio from India। So इसका करेक्ट आंसर क्या है? ईयर 1995। इसका जो मेन अचीविंग कवरेज ऑफ ओरल पोलियो वैक्सीन, इराडिकेटिंग ट्रीट फ्रॉम ऑल 100% कवरेज, इराडिकेटिंग फ्रॉम पोलियो फ्रॉम इंडिया। व्हेन वाज द डायरियल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्टेड? डायरियल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी ईयर 1965, ऑप्शन सी ईयर 1980-81, ऑप्शन डी ईयर 1995। डायरिया रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? डायरिया इसका करेक्ट आंसर है 1980-81। 1980-81। The diarrhea disease control program was started in the 1980-81. This program aimed to address the issue of diarrhea disease, which are a significant cause of morbidity and mortality. So इसका 1980-81 करेक्ट आंसर है। What is malaria? मलेरिया क्या है? बैक्टीरियल डिजीज, ऑप्शन बी प्रोटोजोअल डिजीज, ऑप्शन सी वायरल डिजीज, ऑप्शन डी फंगल डिजीज। मलेरिया क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है, प्रोटोजोअल डिजीज है, वायरल डिजीज है, फंगल डिजीज है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका प्रोटोजोअल डिजीज। मलेरिया क्या है? प्रोटोजोअल डिजीज है। Malaria is a protozoal disease caused by parasite of the Plasmodium species. The primary agents responsible for malaria in humans are Plasmodium falciparum,
प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियल एंड प्लाज्मोडियम ओवेल। सो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रोटोजोल डिजीज इसका करेक्ट आंसर है। फीवर पैटर्न इन मलेरिया, मलेरिया में फीवर का पैटर्न होता है कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज, स्वेटिंग स्टेज। ऑप्शन बी हॉट स्टेज, कोल्ड स्टेज, स्वेटिंग स्टेज। ऑप्शन सी कंटिन्यूअस फीवर फॉर 7 days। ऑप्शन डी नो पर्टिकुलर पैटर्न, मलेरिया में बुखार का पैटर्न होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज, स्वेटिंग स्टेज। इसके अंदर 3 स्टेज होती है। इन मलेरिया द फीवर पैटर्न टिपिकली फॉलो ए साइक्लिक पैटर्न। इसमें 3 साइक्लिक पैटर्न होता है। इसमें एक कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज एंड स्वेटिंग स्टेज। कोल्ड स्टेज को प्रोड्रोमल और शिवरिंग स्टेज के नाम से भी जानते हैं एंड हॉट स्टेज को फेब्राइल और पाइजेनिक स्टेज के नाम से भी जानते हैं। स्वेटिंग स्टेज को आल्सो नोन एज डिफरेंसेस स्टेज के नाम से भी जानते हैं। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय चिल्स एंड शिवरिंग। द पेशेंट फील्स कोल्ड एंड मे एक्सपीरियंस सीवियर शेकिंग। हॉट स्टेज आल्सो नोन एज फेब्राइल और पाइजेनिक स्टेज एंड स्वेटिंग स्टेज आल्सो नोन एज द डिफरेंसेस stage. During this stage, the fever gradually subsides and the patient experiences profuse sweating, leading to a decrease in body temperature. So इसमें 3 स्टेज होती है, cold, hot and sweating stage. Thanks for watching. Don't forget to subscribe and comment and share.